اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ہم میں سے اکثر کے لیے یہ امر حیرانی کا باعث ہوگا کہ ایران میں یہودیوں کی بھی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے۔ محتاط اندازے اور اعداد و شمار کے مطابق انقلاب کے وقت ایران میں رہنے والے یہودیوں کی تعداد 1.25 لاکھ سے زیادہ تھی، جو ایران کے مختلف شہروں میں رہتے تھے۔ تاہم انقلاب ایران کے بعد ان کی بہت بڑی تعداد نے امریکہ، کینیڈا اور اسرائیل وغیرہ کی طرف ہجرت کی، اور اب تقریباً 30,000 یا اس سے کچھ اوپر کی تعداد میں یہودی ایران میں بستے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ ہے کہ مجلس خبرگان جو ایرانی سپریم لیڈر کا انتخاب کرتی ہے، اس میں بھی ایک یہودی ممبر موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح اسلامی مجلس شورا میں بھی یہودیوں کا ایک نمائندہ شامل ہوتا ہے۔ ایرانی شہروں میں یہودیوں کی متعدد عبادت گاہیں، اسکول، ثقافتی ادارے، نوجوانوں کی تنظیمیں، خواتین کے مراکز اور اسی طرح دیگر کمیونٹی سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایران میں یہودیوں کے اخبارات اور رسائل بھی شائع ہوتے ہیں۔ یہودی دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں یا جہاں بھی یہ گئے، انہوں نے اپنی مذہبی، ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے انجمنیں ضرور قائم کی۔ موجودہ دور میں ایرانی یہودیوں کی اہم ترین تنظیم انجمن یہودیان تہران ہے، اور باقی تمام تنظیمیں اس کے ماتحت ہیں۔ یہودیوں کی زیادہ تعداد تہران، شیراز، اصفہان، ہمدان، کرمانشاہ، یزد، کرمان، رفسنجان، سیرجان، بروجرد اور دیگر شہروں میں پائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان مشہد مقدس کے رہنے والے یہودی اور ان کا قتل عام ہے۔ مشہد میں ہونے والے اس قتل عام میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ہندوستان کا رخ اختیار کیا اور بمبئی سے مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ موجودہ پاکستان کے کئی شہروں مثلاً راولپنڈی، لاہور اور کراچی وغیرہ میں بھی یہودیوں کی کچھ تعداد آباد تھی، جو ان شہروں میں بڑی منظم اور پرآسائش زندگی گزار رہے تھے۔ آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے لاہور میں کچھ چھوٹے کاروباروں کے علاوہ قابل ذکر طور پر یہودی جسم فروشی کا نیٹ ورک بھی چلاتے تھے، جس میں یہ دوسرے مذاہب کی خواتین سے یہ دھندا کروا کر دولت کما رہے تھے۔ اسی طرح کراچی کے کچھ اچھے اور بڑے کاروبار بھی یہودیوں کے کنٹرول میں تھے۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل میں 85,000 یہودی ایسے ہیں جو انڈیا سے ہجرت کر کے اسرائیل میں جا بسے تھے۔ اسی لیے ان یہودیوں نے انڈیا اور اسرائیل کے تعلقات استوار اور مستحکم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ویٹ آلٹ ملر، جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایچ ڈی ہیں، اپنے ایک مضمون میں راولپنڈی کے یہودیوں کا تذکرہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہ مشہد سے کس طرح بھاگ کر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں راولپنڈی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہودیوں کی یہ ہجرت مشہد مقدس سے نادر شاہ افشار کے دور کے بعد ہوئی۔ یہودیوں کو ایران میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور ان پر ان کی سازشی عادات کی وجہ سے سختی کی جاتی تھی۔ نادر شاہ افشار، جو پیدائشی طور پر تو شیعہ تھا لیکن بعد میں آزاد خیال یا لادین ہو گیا تھا، کے دور میں یہودیوں کے ساتھ کافی نرم رویہ اختیار کیا گیا۔ اس وجہ سے یہودی دوسرے شہروں سے کافی تعداد میں مشہد مقدس منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اس پر ایران اور خصوصاً مشہد مقدس کی شیعہ آبادی شدید غم و غصے میں تھی۔ مشہد مقدس چونکہ امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارکہ ہونے کی وجہ سے پورے ایران بلکہ عالم اسلام میں ایک مقدس شہر تصور کیا جاتا تھا، اس لیے مشہد کے شیعہ یہ سمجھتے تھے کہ مشہد میں غیر مسلموں کو رہائش اور داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، کچھ مورخین کے مطابق نادر شاہ کی یہودیوں سے مہربانی کی وجہ یہ تھی کہ نادر شاہ کی لادینیت کی وجہ سے شیعہ اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ نادر شاہ کو اپنے خزانے، اموال اور دیگر اثاثہ جات کی رکھوالی کے لیے یہودیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔
मशहद मुक़द्दस चूंकि नादिर शाह का दारुल खिलाफा था, इसलिए यहूदी बड़ी तादाद में आकर मशहद मुक़द्दस में आबाद हो गए। नादिर शाह ने उनके लिए अलग मोहल्ले तामीर करवाए जिन्हें ईदगाह कहा जाता था। मशहद में आए यहूदी 90 साल तक खूब फले फूले और यहाँ उन्होंने अपनी इबादत के लिए एक बड़ा सिनेगॉग यानी इबादत खाना भी तामीर किया। स्कूल और सकाफती इदारे भी कायम किए। उसी दौरान एक ऐसा वाक़या हुआ कि जिसने यहूदियों को मशहद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, ये 27 मार्च 1839 का दिन था जब मशहद मुक़द्दस में यहूदियों का कत्ल हुआ। इस वाक़े की रुदाद कुछ यूं है कि 1839 के मुहर्रम में आशूरा के दिन कोढ़ की बीमारी में मुब्तला एक यहूदी औरत हकीम के पास अपने इलाज के लिए गई। उस हकीम ने इलाज के तौर पर उस औरत को कुत्ते का खून जिस्म के मुतासिरा हिस्सों पर मलने के लिए तजवीज़ किया। इस पर उस औरत ने एक कुत्ते को मार कर उसका खून अपने जिस्म और चेहरे पर मला। उस वक्त ईरान पर काचारी हुकूमत कर रहे थे और मोहम्मद शाह काचार ईरान का बादशाह था। विकिपीडिया फ्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक समद आका बिन यूसुफ दलमानी ने इस वाक़े की रुदाद लिखी है और बयान किया है कि उस यहूदी औरत ने कुत्ता मार कर माह मुहर्रम में मातमी जुलूस के रास्ते में फेंक दिया था। उस पर मुसलमान चीखपा हो गए कि उस औरत ने जानबूझकर नफरत के तहत मुसलमानों का मजाक उड़ाने की खातिर ऐसा किया है। मुसलमान ये शिकायत लेकर मशहद के इमाम जुमा के पास गए। इसी असना में इमाम जुमा के पास शियों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया था। उस हुजूम ने यहूदियों के मोहल्ले पर हमला कर दिया। 36 या बरिवायत 40 यहूदी मर्द कत्ल करके मालो असबाब लूट लिया। फिर यहूदियों के इबादत खाने, उनके कारोबार और जो कुछ हाथ लगा लूट लिया गया। मशहद में जो सबसे बड़ा सिनेगॉग यानी यहूदी इबादत खाना था, उसे तब्दील करके हुसैनिया यानी इमाम बारगाह बना दिया गया, जो आज तक मौजूद है। नाजरीन, यहूदियों को कत्ल करने के बाद उनकी अच्छी खासी तादाद जो बच गई, उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया। उस वाक़े के बाद मशहद के यहूदियों ने दोहरी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। हर यहूदी के 2 नाम होते थे, एक इब्रानी जो असल नाम होता था और एक गैर यहूदी नाम जो माशरे में तारुफ के लिए होता था। अलबत्ता औरतों के 2 नाम नहीं थे क्योंकि उनका वास्ता बाहर के अफराद से नहीं था। जैसे ही कोई लड़की पैदा होती, उसके कान छेद कर बालियां पहना दी जाती और ऐलान कर दिया जाता कि इसकी शादी फलां जगह तय हो गई है। इस तरह मुसलमानों के रिश्ता मांग लेने के खतरे से जान छूट जाती थी। बयान किया जाता है कि उसी दौर में ये दोहरी जिंदगी गुजारने वाले यहूदी ज़ाहिरन ज़ियारात मुक़द्दसा और हज और उम्रा तक करके आए थे। मशहद के यहूदियों ने ये अहद कर रखा था कि वो मुसलमानों से हलाल गोश्त खरीद तो लेंगे, लेकिन उसे अपनी बिल्लियों और कुत्तों को खिला देंगे, क्योंकि यहूदी ज़िबा किया गया गोश्त या हलाल गोश्त नहीं खाते। नाजरीन, जान के खौफ से मशहद के 300 यहूदी मुसलमान हो गए। इस अमल को मशहद में आज भी अलादाद के नाम से याद किया जाता है और किताबों में वाक़या अलादाद के नाम से तहरीर किया गया है। इस वाक़े के बाद कई नस्लों तक यहूदी अपनी इबादत खुफिया तरीकों से अदा करते रहे। जंग अजीम दोम के बाद मशहद के बेशतर यहूदी जो हिजरत करके तेहरान आ गए थे, इसराइल और अमेरिका की तरफ हिजरत कर गए। मौजूदा दौर में मशहद के यहूदी तल अबीब, हर्जोलिया और बनी बाराक में पाए जाते हैं। न्यूयॉर्क में मशहद के यहूदियों का मखसूस मोहल्ला और चंद सिनेगॉग भी हैं। नाजरीन, रावलपिंडी चीन और ईरान के दरमियान तिजारत के लिए एक अहम स्टेशन था। चीन से रेशम और बर्तन आते थे और ईरान से कालीन और ज़ाफ़रान वगैरह चीन जाते थे। ये सारी तिजारत रावलपिंडी के जरिए हुआ करती थी। ईरान के यहूदी भी रावलपिंडी आते जाते रहते थे, इसलिए जब उन पर मुश्किल पड़ी तो उन्होंने रावलपिंडी आना ही मुनासिब समझा। मशहद से जो यहूदी भागकर पंजाब आए, उन्हें रंजीत सिंह के दौर में रावलपिंडी में पनाह दी गई, जो रावलपिंडी के बाबू मोहल्ले में
रिहाइश इख्तियार करके तिजारत के पेशे से मुंसलिक हो गए। सिख हुकूमत में उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल थी। उन्होंने रावलपिंडी में एक खूबसूरत सैनिगॉग और कम्युनिटी सेंटर बना लिया। कुछ इसी तरह के वाक़यात और आबादकारी लाहौर में भी यहूदियों के बारे में बयान की जाती है। नाजरीन, रंजीत सिंह अगरचे उसी साल मर गया था कि जिस साल यहूदी यहाँ आए थे। 1849 में पंजाब में सिख दौर के खात्मे के बाद भी ये यहूदी रावलपिंडी और लाहौर में अमन और सुकून से रहते रहे, लेकिन 1947 के वक्त होने वाले फसादात की वजह से रावलपिंडी और लाहौर के बहुत से यहूदी इंडिया चले गए। जो इक्का दुक्का बाकी बचे वो भी 1960 तक इंडिया के रास्ते इसराइल मुंतकिल हो गए। मशहद मुकद्दस में यहूदियों के इस कत्ले आम और उसके बाद नस्ल दर नस्ल होने वाली हिजरत को आज भी इसराइली यहूदी बड़ी शद्दोमत के साथ याद करते हैं और उस वाक़े की पेंटिंग्स बनाकर उन्होंने तल अबीब के यहूदी म्यूजियम में रखी हुई हैं। यहूदी अपने साथ होने वाले हर वाक़े को याद रखते हैं और मुसलमानों और खुसूसन ईरानियों के साथ उनकी नफरत का एक बहुत बड़ा सबब वाक़या अल-अहदाद भी है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हमारी दरख्वास्त है कि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करके तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नशर व अशात में हिस्सेदार बने। आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियां तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।